So yesterday we were discussing charged spherical conductor. तो हमने ये कहा था कि जो उसकी surface है, all the charge is going to be accumulated on the surface. This is how it is going to look like. So the electric field of this charged spherical conductor is similar to the point charge. So the electric field of charged spherical conductor would look like a point charge. So what do we mean by this? कि अगर हमारे पास ये charged spherical conductor है, so if I draw the field lines around it, so it is going to be acting just like हमने कल एक field बनाई थी, बिल्कुल उसी तरीके से. और जो पॉइंट चार्ज है उसकी फील्ड ऐसे होती है, कल हमने बनाया था पॉइंट चार्ज. दिस इज पॉइंट चार्ज. सो फॉर पॉइंट चार्ज ये कल हमने फील्ड लाइंस बनाई थी इसकी इस तरह. Now why it is important to compare a point charge and a conducting sphere? तो comparison इसलिए ज़रूरी है because in most of our cases we deal with charged spheres. So this is charged conducting sphere. So now remember yesterday we said that there is no charge in the middle. तो charge जो है वो अपने आप को redistribute कर लेता है. So basically यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ that there is no charge. There is no charge inside conducting sphere. Nice. Wow. First one. So there is no charge inside conducting sphere, right? So, but if we extrapolate the field lines, it appears as if the field lines are coming from the center. अगर इस field lines को हम join करें inwards, so it appears as if the field is coming from the center. जी हारून, are you saying something? Lucky, please. जी, I can't hear you. Can you speak loud? नहीं सर, कुछ नहीं सर. सब दूसरी क्लास में बैठे हैं सब लोग. Okay. और पता नहीं क्लास चल रही है, उधर बैठे हुए हैं. So if the field lines are extrapolated, if the
field lines are extrapolated it appears as if field lines are coming from the center. Field lines are coming from center. ये पेपर में ना 3 नंबर का, ये 4 नंबर का सवाल आता है कि why a point charge, sorry, why a conducting sphere behaves as a point charge. तो ये मैं इसकी explanation लिखवा रहा हूँ. So let's say if we have so basically if I have if I just draw the diagram, so this is the charged spherical conductor. So field lines basically they are coming from चार्ज सारे का सारा जो है वो सरफेस पे है, राइट? Let me invite some students. अब चार्ज सारे का सारा सरफेस पे है, which means that all the charge is actually on the surface. There is no charge inside. लेकिन अगर आप इस चार्ज को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं टुवर्ड द सेंटर, तो ऐसा फीलिंग ये आती है कि चार्ज जो है दैट इज सिचुएटेड एट द सेंटर, ठीक है? सो दिस इज व्हाट आई सेड, इफ द फील्ड लाइंस आर extrapolated, it appears as if the field lines are coming from the center. So if the field lines are extrapolated, it appears as if the, let me invite some students. So if the field lines are extrapolated, it appears as if the field lines are coming from the center. So अब हम इसकी last line लिख लें. So therefore the these charged spherical conductor behave as a point charge. The charged spherical conductor
behaves as point charge. तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि does the charge metallical conductor behaves as a point charge, explain, तो आप ये लिखेंगे if the field lines are extrapolated it appears as if the charge is at the center, but in reality due to electrostatic equilibrium all the charge is actually on the surface of the sphere, but it appears as if the charge is at the center, so we can say that the charge conducting sphere behaves as a point charge. This is what the explanation in full is, right? Any doubts so far? अब इसकी कुछ properties हैं charge metallic sphere की. This is what we need to discuss. So the very first thing is that if you see again जो फीड लाइन जितनी नीचे है उतनी ऊपर की तरफ है. इसका मतलब है कि अगर सेंटर में आप देखें इलेक्ट्रिकल फील्ड, सो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज गोइंग टू बी जीरो इनसाइड. इसी तरह अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं टुवर्ड्स द राइट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो बनेगा टुवर्ड्स लेफ्ट. सो अगेन इन द सेंटर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. सो यहाँ पे हम लिखते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको ई कहा जाता है. एनीथिंग, एनी क्वेश्चन? द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड charged spherical conductor is zero. नीचे से नजर नहीं आ So E की value inside zero, right? So E is equal to zero. Inside. Now there is a concept आप लोगों ने AS में पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, क्योंकि इस पे जैसे पॉजिटिव वायर है तो उसका कोई पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और वो कांस्टेंट होगा, तो बेसिकली इनसाइड जो पोटेंशियल है कंडक्टर के जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहा जाता है वो इनसाइड जो है वो कांस्टेंट होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और उसका पोटेंशियल जो है दैट इज कांस्टेंट, राइट? सो वन लास्ट पॉइंट for this is the electric potential, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस भी आप लोग जनरली कह देते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बिटवीन पोटेंशियल होता है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. जैसे एक पॉजिटिव वायर है उसके साथ कोई और वायर नहीं है, लेट्स से वो 50 वोल्ट्स की है फॉर एग्जांपल, तो इसी तरह हम उसको कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज कांस्टेंट inside and on the surface of the sphere. So potential की value है that is constant. So the electric potential V is constant inside and on the charged conducting sphere. Any doubts so far?
सो अगर इसको मैं समराइज करूँ इस लेसन को, कई लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कल हमने डिस्कस किया था चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, एंड हमने ये कहा था कि अगर एक किसी कंडक्टर को आप कोई चार्ज देते हैं तो वो इनसाइड नहीं रह सकता, बिकॉज चार्ज मूव अराउंड इन अ कंडक्टर, एंड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन अगर आप पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं बहुत सारा, किसी कंडक्टर को चार्ज कर देते हैं, तो बिकॉज ऑफ द रिपल्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आ जाता है और सारे का सारा चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर आ जाएगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इनसाइड। तो अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे उसकी जो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है फॉर एग्जांपल, तो उसकी फील्ड लाइंस दे विल अपीयर एज इफ दी फील्ड लाइंस ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज। और अगर आप ये कंडक्टर की फील्ड लाइंस को एक्स्ट्रापोलेट करें, it appears as if that the field lines are actually coming from the center of the sphere. तो बेसिकली वी कैन से दैट, जैसे इसका क्वेश्चन भी आता है 3 या 4 नंबर का एग्जाम के अंदर, कई दफ़ा ये पूछ करते हैं, और इसके ग्राफ्स के भी आते हैं, ग्राफ्स इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है आता है जी इसका, क्वेश्चन इसका ये आता है कि क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज, तो हम ये कह सकते हैं यस, द चार्ज metallic sphere or conducting sphere behaves as a point charge because if the field lines are extrapolated, it appears as if the charge is stored at the center but the charge is at the surface, right? लेकिन because आप extrapolate करते हैं, तमाम lines को join करते हैं, तो वो center पे meet करती हैं। So we can say that the field lines are actually coming from the center of the sphere, right? और उसमें 2 और पॉइंट्स मैंने भी लिखे कि क्योंकि चार्ज नहीं है, आप किसी भी पॉइंट में इनसाइड चले जाएं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जीरो होगी। लेट से आप सेंटर में खड़े हैं तो एक ऊपर फील्ड लाइन है बिल्कुल उसके ऊपर और एक नीचे फील्ड लाइन होगी, सो दे विल कैंसल आउट ईच अदर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट इनसाइड द स्फीयर एंड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो कूलम्स लॉ में हमने फॉर्मूला लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी वैलिड है, क्योंकि हमने जब कूलम्स लॉ को डिफाइन किया था वो हमने डिफाइन किया था पॉइंट चार्ज के लिए। तो वो पॉइंट चार्ज से क्या मतलब होता है कि ऐसा चार्ज जिसका ना वॉल्यूम हो ना उसका कोई एरिया हो, बट क्योंकि हमें ये भी पता चल गया है कि चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, so the expression of Coulomb's law and the electric fields are also valid for the charge conducting surface. So this is the next line that I'm going to write. Any doubts बच्चों so far? So I'm just writing here as the charged metallic भी कह सकते हैं, और conducting spheres as the charged metallic or conducting spheres behave as point charge So expressions of Coulomb's law and the electric fields are also valid. तो Coulomb's law के लिए हमने expression लिखे थे वो भी valid हैं. So the expressions of Coulomb's law and electric field strength for point charges
are also valid for conducting spheres. Right? Any doubts so far? सर ये व्हाइट बोर्ड लोड नहीं हो रहा जी क्या कह रहे हैं? सर व्हाइट बोर्ड लोड नहीं हो रहा ओवरफ्लो हो रहा है? थोड़ी देर सर लगती है वो उसके बाद लोड होता है। ओके, हाँ नहीं इसको तो 5 मिनट मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ये जो तमाम लाइंस मैंने लिखवाई हैं इसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से। मैंने ये लिखवाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज मेटेलिक स्फीयर इज जीरो, और फिर मैंने लिखवाया दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज कांस्टेंट इनसाइड एंड ऑन द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर सरफेस। जो सरफेस है उसके ऊपर जो यहाँ पे एक वर्ड मैं ऐड कर रहा हूँ, सो द electric potential is constant inside and on the charge conducting sphere's surface. सरफेस पे जितना पोटेंशियल है या उसके इनसाइड है वो कांस्टेंट होगा। जैसे एक वायर है, अगर वो 50 वोल्ट्स की है तो इनसाइड भी 50 वोल्ट्स हैं, उस तार के ऊपर भी 50 वोल्ट्स हैं। सो क्योंकि वो चार्ज में मेटल की बनी हुई थ्रू आउट। तो नाउ अब हमने डिस्कस करना है कि जो एक्सप्रेशंस हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेटेलिक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, ये बिहेव करता है एज अ पॉइंट चार्ज। तो जो एक्सप्रेशंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एंड कूलम्स लॉ के फॉर पॉइंट चार्जेस, दे आर आल्सो एप्लीकेबल फॉर द कंडक्टिंग स्फीयर्स, राइट? एनी कंफ्यूजन सो फार? Okay, now I will just going to write down the expressions. So let's say we have a radius r, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा? लेट्स से कि एक पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। सो लेट्स से दिस पॉइंट इज P ओवर हियर। तो अगर हम इसको देखें तो डिस्टेंस जो है फ्रॉम द सेंटर टू दिस पॉइंट इज r, स्मॉल r। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन निकालना है तो फॉर्मूला वही यूज़ होगा जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, K/r²। सो E का एक्सप्रेशन होगा K, और ये यहाँ पे Q क्या चीज़ है? Q यहाँ पे टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, कि इस पूरे स्फीयर का टोटल चार्ज कितना है। सो Q here represents total charge of sphere. So we have expression E/Q। अब यहाँ पे कैपिटल R यूज होगा या स्मॉल r यूज होगा? कौन बताएगा? स्मॉल r यूज होगा, क्योंकि हम सेंटर से जिस पॉइंट पे आप देख रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस होता है। तो K/r²। ये कहाँ वैलिड है? ये एक्सप्रेशन वैलिड है अगर आपका जो स्मॉल r है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R। अच्छा, अगर आप पॉइंट Q ले लेते हैं, पॉइंट Q सरफेस पे कोई पॉइंट है, लेट्स से समवेयर ओवर हियर। ये मैंने जो ऊपर एक्सप्रेशन निकाला है ये एट P निकाला है कि P पे कितना होगा। अगर आप Q पे निकालना चाहते हैं तो E का एक्सप्रेशन होगा K/Q/, ये K वही है, रिमेंबर ये मैंने लास्ट टाइम भी लिखवाया था कूलम्स लॉ में। इस K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और किसी स्टूडेंट ने पूछा भी था तो मैंने एक्सप्लेन किया था, ये मैंने
दिखवाया था कि k जो है ये इसके इक्वल है। तो अगर आप q की बात करते हैं एट पॉइंट q, तो k q अपॉन r, इसमें अब क्या यूज होगा, कैपिटल R यूज होगा, क्योंकि आप सरफेस की बात कर रहे हैं। और अगर आप इनसाइड चले जाते हैं, लेट्स से इनसाइड हमारे पास कोई भी पॉइंट है, लेट्स से समवेयर ओवर हियर, लेट्स से इसको हम पॉइंट y कह देते हैं। अब इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है, ये हमने डिस्कस की हुई है दैट अगर हमारे पास इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो जीरो होगी। ये इस पॉइंट को अच्छी तरह याद रखिएगा। सो एट, क्या कह रहे हैं, दोबारा पूछे। हम्म। यार देखिए डायग्राम में कैपिटल आर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस डिस्टेंस में जो स्मॉल आर है वो भी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस क्वेश्चन में आर जो होगा वो कैपिटल आर के इक्वल होगा। आर जनरल डिस्टेंस होता है इसमें, क्योंकि आप सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, तो रेडियस को पुट करना ज्यादा बेहतर है यहाँ पे, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और अगर आप इनसाइड चले जाते हैं, जैसे y की हम बात करते हैं एट y, अब y में क्योंकि ये इनसाइड है, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है एट y, तो E का जो वैल्यू होगा दिस इज गोइंग टू बी जीरो। अगर आपका डिस्टेंस जो स्मॉल r है अगर वो r से छोटा है, इनसाइड द स्फीयर आप चले जाते हैं, कोई भी डिस्टेंस है r और वो रेडियस से छोटा है, लेट्स से किस डिस्टेंस को हम स्मॉल r कह देते हैं, लेट्स से वी कॉल दिस डिस्टेंस एज स्मॉल r। अगर ये स्मॉल r इनसाइड चले जाते हैं आप रेडियस के, तो इनसाइड E की वैल्यू क्या होगी, ये जीरो होगी। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, एनी डाउट सो फार? तो जो हमने कल टॉपिक शुरू किया था ये कंप्लीट हो गया है, जिसे आप कहते हैं चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो इसकी कहानी इस तरह शुरू हुई, मैं दोबारा इसको रिकॉल करवा देता हूँ कि चार्ज कंडक्टिंग सर ये स्फीयर एक पॉइंट लार्जर ऑब्जेक्ट होता है जी। ये पॉइंट क्यू में आर स्क्वायर नहीं होगा नीचे डिनोमिनेटर? क्या कह रहे हैं, दोबारा पूछें, आपकी आवाज़ कट रही थी। ये क्यू पॉइंट में आपने आर स्क्वायर नहीं लिखा, ओ कैपिटल आर सॉरी स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट। यहाँ स्क्वायर आएगा कि फॉर्मूले में कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि जो वैसे पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज में क्या फर्क होता है, पॉइंट चार्ज एक ऐसी चीज़ होती है जिसका ना वॉल्यूम होता है और ना ही उसका कोई एरिया होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिगर ऑब्जेक्ट, जिस तरह बैलून है या नॉर्मल हमारे पास एक मेटेलिक बॉल है। अब वो तो पॉइंट चार्ज नहीं है क्योंकि उसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है और उसका कोई ना कोई ऑब्वियसली सरफेस एरिया भी होगा। लेकिन अगर उस मेटेलिक बॉल को अगर हम चार्ज कर देते हैं, अभी हमने ये डिस्कस किया कि उसका सारे का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, कोई भी चार्ज इनसाइड नहीं रहेगा। सो बिकॉज ऑल दी चार्जेस ऑन दी सरफेस ऑफ दी स्फीयर, तो जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो बिल्कुल दिखने में वैसे ही नजर आएंगी जिस तरह पॉइंट चार्ज की हैं, और वो जनरेट हो रही है सरफेस से। लेकिन अगर आप उनको फील्ड लाइंस को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो इट अपीयर्स एज इफ कि जो चार्ज है वो सेंटर में पड़ा हुआ है, वहाँ से फील्ड लाइंस आ रही है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। लेकिन हम वर्ड यूज़ करते हैं इट अपीयर्स एज इफ द फील्ड लाइंस आर कमिंग फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो बिहेवियर है पॉइंट इसका चार्ज मेटेलिक स्फीयर का, ये वैसे ही है जैसे किसी पॉइंट चार्ज का बिहेवियर है। और इसके दो प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड वो जीरो होगी, और इसका जो पोटेंशियल होगा थ्रू आउट वो कांस्टेंट होगा। जो सरफेस से पोटेंशियल पड़ा हुआ है जो, या जो अंदर पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होगा। फिर हमने कहा कि जो दूसरे एक्सप्रेशन हैं कूलम्स लॉ के या जो इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं, दे आर ऑल एप्लीकेबल फॉर दी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, वो तो उसके लिए भी एप्लीकेबल हैं, और जो पॉइंट चार्ज वाले फॉर्मूलाज थे वो इसके लिए एप्लीकेबल हैं। तो अब यहाँ पे हमने तीन सिनेरियोज देखे कि एक हमने डिस्टेंस देखा, एक पॉइंट हमने देखा जो स्फीयर से दूर था, उसको हमने पॉइंट पी का, और सेंटर से लेकर वहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है। तो अगर आपको वहाँ पे E की वैल्यू निकालनी है तो दैट वुड बी E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन सिंपल स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन अगर आप सरफेस के ऊपर खड़े हैं, सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे, तो उसमें फॉर्मूला यूज होगा E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जैसे आपको एग्जाम दे देता है कि एक एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है कि एक चार्ज जो है वो है 20 माइक्रोकूलम्स और उसका रेडियस आपको बता दे, और आपको कहे कि इतने डिस्टेंस पे बताएं कितनी फील होगी, तो वो डिस्टेंस आर पुट करना है। अब वो आर जो है अगर वो रेडियस से छोटा है, अगर इनसाइड दी बात हो रही है स्फीयर की, तो वो आर जो है वो जीरो होगा, देयर वुड बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड। इन चीज़ों का आपने याद रखना। इज देयर एनी डाउट? अब ये स्क्वायर वाला पे रिपीट वो जी वाइट बेटा बोर्ड दोबारा स्टक हो बताएं। गया था।
सर ये स्पेयर वाला आप रिपीट कर सकते हैं मेटेलिक स्पेयर कि इसमें रेडियस का साइज क्या अफेक्ट करती है? बेसिकली फार्मूला वही है जो हमारे पास नॉर्मल फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है सिंपली E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर है डिस्टेंस, जहाँ पे पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है और जहाँ पे कोई पॉइंट है उसको डिस्टेंस कहते हैं। अब क्योंकि जो स्फीयर है वो इटसेल्फ साइज में बड़ा है, तो अब हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। या तो हमारा डिस्टेंस जो है वो इस तरह होगा कि जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जा रहे हैं दैट इज बिगर देन द रेडियस। सो द फर्स्ट सिनेरियो इज दैट द वैल्यू ऑफ आर, जो आर है हमारे पास, दैट इज बिगर देन द रेडियस। ठीक है, वो रेडियस मैंने यहाँ पे, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। सो ये बेसिकली एक हमारे पास रेडियस है कैपिटल आर, और हमारे पास जो पॉइंट पी है दैट इज आउटसाइड दी स्फीयर, पॉइंट पी यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर। तो फॉर्मूला सिंपल प्लेस होगा के क्यू अपॉन आर के। लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड कब है? ये फॉर्मूला वैलिड है अगर आपका आर जो है इज बिगर देन द रेडियस, उसके लिए ये एप्लीकेबल है। उसके बाद सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर आप सरफेस के ऊपर हैं, सरफेस के ऊपर होने का मतलब ये है कि दैट योर डिस्टेंस इज radius is taken as the distance r is taken as the radius of the sphere। तो फार्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही होगा, लेकिन उसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट हो जाएगा बिकॉज दैट इज द रेडियस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सेंटर से लेकर डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेजर करना है। ग्रेविटेशन में भी आपने देखा होगा कि जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो सेंटर से मेजर करते हैं। और फिर तीसरा सिनेरियो क्या है? तीसरा सिनेरियो ये है कि आपका जो चार्ज पड़ा हुआ है, जो सॉरी स्फीयर के अंदर जो पॉइंट है वो इनसाइड है। तो इनसाइड का मतलब ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनसाइड। इनसाइड में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होगी? ज़ीरो होगी। अब इसका एक छोटा सा एमसीक्यू टाइप, एमसीक्यू तो नहीं आता लेकिन एक छोटा सा हम ये कह सकते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का देख लेते हैं कि वो किस तरह का है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? शुड आई मूव ऑन? Okay, I'm going to move on and let us discuss a small question. क्वेश्चन ये है कि a charged metallic sphere, a charged metallic sphere has a total charge of 30 माइक्रोकूलम्स। और उसके बाद वो बता देते हैं कि जो रेडियस है इसका, द रेडियस इज the radius is 3 centimeters, 3.0 centimeters। Something happened to the whiteboard. Just a minute. Okay. So the radius is 3.0 centimeters.
सेंटीमीटर्स। सो आपने करना ये है, व्हाट यू हैव टू डू इज 3.0 फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट, अब ये 3 हमारे पास पॉइंट्स गिवन है। लेट्स से कि सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज R is equal to 1.5 centimeters. दूसरा है R is equal to 4 सेंटीमीटर। अब आप इसका बेहतर ये कि इस तरह के क्वेश्चन में डायग्राम बना लिया करें सो दैट यू कैन नो कि हम बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। सो बेसिकली हम एक चार्ट स्फीयर बनाएंगे और उसका जो रेडियस है, दिस रेडियस इज, ये रेडियस हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर्स। अब क्योंकि रेडियस 3 सेंटीमीटर गिवन है और पार्ट 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि जो डिस्टेंस है आपके पास वो है जी 1.5 सेंटीमीटर, तो वहाँ पे स्ट्रेट अवे आप ये कहेंगे कि E इज इक्वल टू 0। E is equal to 0 if R is equal to 1.5। उसकी वजह क्या है कि जो इनसाइड है, ये चार्ज के अंदर की बात हो रही है, सफ़ेयर के अंदर की बात हो रही है, और सफ़ेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ठीक है, सो R इज़ बेसिकली लेस दैन द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो है 3 सेंटीमीटर्स। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में कि जो अगर आप रेडियस को 4 सेंटीमीटर्स कर देते हैं, नॉट रेडियस बल्कि जो पॉइंट है, रेडियस तो उसका 3 ही रहेगा, लेकिन जो पॉइंट जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखनी है वो अगर 4 हो जाए तो फिर क्या होगा। लेट्स से इफ आई जस्ट रीड ऑल द डायग्राम, बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे, और जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर। तो वो फॉर्मूला पुट करेंगे, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू मैंने लिखवाई थी 9 इंटू 10 पावर 9। ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहती है, ये पीछे आपको मिल भी जाएगी। इसमें जो क्यू हमने लिखा हुआ है यहाँ पे जो हमें दिया गया है दैट इज़ 30 माइक्रो कूलम, और हमने हमेशा ऐसा यूनिट में काम करना होता है। तो 30, आई थिंक इट इज़ 3 और 30, इट इज़ 30 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे आप 30 लिखेंगे, माइक्रो की जगह लिखेंगे 10 पावर माइनस 6, और नीचे आ जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्योंकि 4 सेंटीमीटर है तो उसका स्केयर भी लेना है और सेंटीमीटर्स को भी मीटर में चेंज करना है। 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 स्केयर। सो ये वैल्यूज आप प्लेस इन करेंगे एंड यू कैन फाइंड द आंसर। सो इफ आई जस्ट find the answer, so this is 9 into 10 raised to the power 9 into 30 into 10 raised to the power minus 6 divided by 4 into 10 raised to the power minus 2, and I am going to take the square of this as well. So मेरे पास ये फाइनल आंसर आता है 1.7। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं, 2 तक लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ डाटा हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक है। सो दिस वुड बी 1.7 into 10 raised to the power 8। और यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं, ये दूसरा मैंने बताया था वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका जो अगला टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होपफुली मंडे से हमारी फेस टू फेस क्लासेस होंगी, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि ग्राफ्स कैसे बनेंगे और ग्राफ्स के क्वेश्चंस किस तरह आते हैं। अब वो इंशाल्लाह हम
डिस्कस करेंगे कमिंग वीक, ठीक है? एनी डाउट सो फार? कोई चीज़ पूछनी है तो प्लीज़ पूछना। ओके बच्चों, देन टेक केयर।